Kshitij, guess who am I? Okay. तो बिनते दिल. Yeah. The first time I read this song or heard this song, it was weird. But उसमें essentially like he's homosexual. He just came from I think Afghanistan or whatever. जो आंखें रोना चाहती हैं उनको जो आपने हिजाब के अंदर रखा हुआ छुपा के रखा हुआ है वो जल उठेगा. तो आपके जो सारे इमोशंस हैं वो बाहर आ जाएंगे. आपका जो सारा सॉरो है जो आपकी लॉन्गिंग है वो फिजिकल बैरियर को तोड़ के बाहर. Yes. Like that's why it makes Yeah, sense. or metaphorical barrier as well. The hijab. He essentially is asking for a kiss here. I see. On the cheek. It's So on the he, cheek. yeah, he's saying, Being cheeky. yeah. So आरज़ों पे मेरे लिख जरा रिफ़अते चाहतों का सिला. वाह, ये जो पूरा बोला है basically this is to say कि Kshitij, guess who am I? Okay. Okay, looks like a Sufi saint. Are you trying to do the whole? Maybe that's why I'm not a dancer or an actor. Are you a dancer? Actually, I've never seen you. Oh, actually, I did see you seen dance. me dance. Yes, yeah, yes. Actually. Yeah, you were a good dancer. Yeah? Uh-huh. Was this good? No. I couldn't It keep a was straight confusing. face. I couldn't keep a straight face. It was confusing. I don't know what you were trying to do. It was even looked like just a Sufi saint just going, trying to go into like a new kind of like New you age know, Sufi saint? Yeah, not new age, just like कल का लड़का सूफी सेंट बनने चला. अच्छा, मतलब तो कोशिश कर रहे हैं. कोशिश कर रहा हूँ, कुछ आ नहीं रहा. अच्छा, अब वो बोल नहीं सकते लेकिन सही है. चलो अच्छा हुआ कुछ और नहीं बोला. I was मैं कर रहा था I was channeling my inner Alauddin Khilji. That's you not remember a good, what I was doing then? That's not a good channel. Change your frequency. That's not a good channel to have. Yeah. But is that from that movie? Padmavat. Yes. You seen the movie? Yes, I have seen the movie. I saw the movie in 3D actually. Okay. Yeah. Was it in 3D? It was in I 3D. did not see it. Yeah, it was crazy. Yeah. It's crazy. What a spectacle. All right. Well, then you should be able to do it. You were seeing it in 3D. असल में मेरा फ्रेम थोड़ा छोटा है ना, अगर मैं यहाँ जाके यूँ करूँ तो फ्रेम से निकल जाता हूँ. हाँ. खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे कौन देख रहा है. Hey, you said we're never gonna say that. It's okay. No, but I was, it's the movie Padmavat. Yes. And we're here to discuss the song. यार बिनते दिल. बिनते दिल. Exactly. ये तो हमने पहले से बात की हुई थी. बिनते दिल करूँगा तभी भी तुम्हें पता नहीं चला मैं क्या कर रहा हूँ. यार कुछ तो सरप्राइज फैक्टर रखना पड़ता है ना. ऐसे थोड़ी. नहीं वैसे मैं यार. I'm not just giving it away. Movement अच्छी नहीं थी तो. Yeah, I mean, could have been better. Yeah. Could have been better. For next time. Next time, try it. तो बिनते दिल. Yeah. The first time I read this song or heard this song, it was weird because I understood bint, dil, and then misriya. Misr. So I'm thinking, इनमें बहुत ही टूटे फूटे उसमें मेरे दिमाग में आया कि बिनते दिल, bint is like a daughter, right? Like a daughter. या तो binte like. It's an Arabic word. It's essentially. Bint is son. Binte is daughter. Bint. So binte is like binte dil when you connect the two words in Arabic or Persian daughter of or Urdu. The heart. Daughter of the heart. Yeah, daughter from the heart. Daughter of the heart. Like that's मतलब what दिल it की is. बेटी. दिल की बेटी. मिस्रिया में. मिस्र मतलब आपका Egypt. So I was exactly right. तो 3 दिमाग में मेरे thought आए थे इसमें. पहला ये कि daughter of the heart मिस्र में, तो इट कैन बी अबाउट लॉन्गिंग कि मेरा दिल कहीं फंसा हुआ है दूर कहीं, राइट. दूर कहीं फंसा हुआ है मेरा दिल, तो वो लॉन्गिंग की फीलिंग, वो अपने बच्चों से अलग होने की फीलिंग, राइट, हो सकती है, या अपने लवर से अलग होने की फीलिंग हो सकती है. बट it wasn't like completely making sense in my head. I mean, daughter of the dil. Daughter of the heart is in Egypt.
हाँ मेरे दिल की बेटी नहीं दिल की बेटी क्या होगा, दिल का काम क्या है, जैसे अगर आप उसको मेटाफोरिकल या नॉट, आई मीन इट्स पोइट्री, सो आप उसको अगर लिटरली ना लो, हाँ, मैं तो लिटरली ले रहा हूँ तो दिल का काम क्या है, अगर हम जो समझते हैं इमोशंस वगैरह, हम नहीं हम समझते हैं कि दिल से इमोशंस आते हैं हमारे वगैरह, राइट, कि इसके तुम किसी कोई रूथली बिहेव करता है तो हम कहते हैं कि दिल नहीं है क्या तुम्हारे पास, मतलब कि दिल से इमोशंस आते हैं, राइट, तो दिल से जो बना है दैट इज एन इमोशन, वो जो मेरा इमोशन, जो एक छोटा सा मेरा इमोशन है, वो फंसा हुआ है कहीं मिस्र में। अच्छा, तो मैं बेटी भूल जाऊं अभी? यस, क्यों उसने स्पेसिफिकली बेटी, ये पहला थॉट मेरे दिमाग में आया। अच्छा, राइट, तो I'm just like maybe that is it, maybe that's what, like, it's a song about longing and everything, so I did not put it into that context of, like, you know, because it's a part of a movie, so movie के अंदर अगर कोई गाना आया तो उसकी पिक्चराइजेशन भी somewhat, except like those what you call it, those यार वो कौन से गाने होते हैं जो हर मूवी में आजकल डाल देते हैं, किस तरह? आइटम नंबर, राइट, वो आइटम नंबर का मूवी से वैसे कोई लेना देना नहीं होता, बट यूजुअली जो बाकी मूवी होती है वो इट काइंड ऑफ शोज हाउ द स्टोरी इज फ्लोइंग और द कैरेक्टर इज फ्लोइंग, कम है लेकिन है, राइट। तो फिर जब मैंने वो देखा तो दूसरा थॉट दिमाग में आया कि बिकॉज उसमें पद्मावत में ये भी तो था ना कि जो खिलजी है ही वांटेड दैट क्वीन, लाइक द प्रिंसेस, क्वीन या दीपिका या सो तो वो उसके उसमें गा रहा है कि लॉन्गिंग की इतने हम पास हैं फिर भी हम दूर हैं, कि दिल की बेटी इन द सेंस कि इतने करीब भी हैं लेकिन फिर भी मिस्र जैसे दूर है, बट दैट डजंट मेक सेंस ईदर, आई एम श्योर इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू एनीवन। अच्छा, तुम ये जो बोल रहे हो कि ये क्या कहते हैं, ये तो आइटम सॉन्ग नहीं था, नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ द स्टोरी, दिस सॉन्ग टेल्स पार्ट ऑफ द स्टोरी, राइट? और ये गाया किसने? अरिजीत सिंह। तो बिन्ते दिल जो उसके अंदर आया, फिर वो मूवी के उसमें कैसे आ रहा है, वो आइटम नंबर नहीं है, वो it's helping tell the story, right? Helping somehow tell the story, like, you know, I don't think it was really what happened to Khilji. I don't know if there are records of it or anything, but for dramatic purposes they have put it in there. But it's still part of the story, though. Okay, for those of our viewers who don't know this song, can you sing it for them? No, I'm not Arijit Singh. हम कर लो. So see, even Arijit Singh, the way he like sang it, I don't know if he, like, you know, I'm pretty sure people see it too, but when he says Misriya mein, there's like another extension of, like, you know, it kind of gives it like that Arabic touch. I feel like, I don't know if it's true or not. ये कौन सी ज़बान में गाना? बिन्ते दिल मिस्रिया में आई थिंक इट्स वेरी अरबिक, एंड जो पूरा गाना है वो अरबिक, पर्शियन और उर्दू मिक्स है। अच्छा, ठीक है, ये मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, मैंने सुना गाना, वो उसकी एक तो वीडियो ही काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग है, मतलब अच्छी वीडियो है, लाइक, बट दैट्स द थिंग, इट्स इन द वीडियो, इट काइंड ऑफ शोज यू व्हाट इट्स टॉकिंग अबाउट. What, like that his Malik Kafoor, the Jim Sarab character, he's feeling some type of way. Yes. वो तो पूरी मूवी में हिंट, हिंट हुआ है लेकिन एक्सप्लिसिटली तो कहीं नहीं. I don't think so, but उसमें essentially like he's homosexual. He just came from I think Afghanistan or whatever. In that movie, in that character. एक्सप्लिसिटली तो नहीं बताया ना मूवी में, या बताया? I don't think so. Okay. I mean, I think interpretation, or is this like the? No, I think it's pretty apparent. Okay. It's pretty. If you watch the movie, I think it's there. But so he is essentially falling for the king. He has Kalauji. feelings for. Yeah, he has feelings for the. I mean, if it's lust or love or anything, they haven't cleared it up. But वहाँ पे जो आता है बिन्ते दिल मिस्रिया में, आपको अब उसके टाइम में भी पुट करना पड़ेगा कि किस टाइम की बात हो रही है, खिलजी कब था वगैरह, राइट? तो मैंने एक्चुअली AM तराज जिन्होंने ये गाना लिखा है उनकी भी एक वो वीडियो देखी जिसमें वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं इसको. तो ही सेड कि उनका जो वो था, उनको जो एक जो डायरेक्टर है संजय लीला भंसाली, उन्होंने जो वो दिया था कि ही इज़ अ होमोसेक्सुअल मैन एंड ही इज़ फॉलोइंग फॉर द किंग एंड एवरीथिंग एंड ही वांट्स द किंग्स अटेंशन ऑन हिम, राइट समथिंग फॉर दैट. सो दैट वाज हिज प्रॉम्प्ट essentially, right? So when he says बिन्ते दिल मिस्रिया में, अब मिस्र जो है इजिप्ट को कहते हैं पुराने ज़माने में, तो मिस्र से वहाँ की जो औरतें थी, लड़कियाँ थी, उनको बहुत खूबसूरत माना जाता था. अच्छा, उस ज़माने में. यस. तो बिन्ते दिल, तो उसके भी और इसके अंदर 2 रेफरेंसेस आ रहे हैं. अब उसके अंदर आपकी
एक तो वो है खूबसूरती, जो औरतें वहाँ की खूबसूरत हैं, वहाँ उसमें बोला गया मिस्र में, और उसके अंदर भी जो सबसे खूबसूरत, जो सबसे नर्म पार्ट होता है, विच इज़ दिल, राइट। तो वो कह रहा है कि मैं उसकी भी अंदर का, मतलब मैं खूबसूरत की भी नरमी से भी खूबसूरत वाला पार्ट हूँ। तो लुक एट मी, like I'm the best of the best, in the sense like I'm the to look at kind of, or And to this be is with. Malik singing. Malik Kafoor singing essentially बिन्त दिल मिस्रिया में, राइट। तो वो अपने आप को ये कह रहा है, एंड देन पेश, फिर आगे खुलता है और ये गाना कि पेश है कुल्लू शबाब। पेश है, शबाब होता है आपका यूथफुलनेस जो आपकी है, और कुल्लू है मतलब एसेंशली कुल, पूरा, कंप्लीटली, राइट। तो पेश है कुल्लू शबाब खिदमत आली जनाब, मतलब आपकी खिदमत में मैंने अपना यूथ रख दिया लाके, सही, तो आपकी खिदमत में रख दिया, आप whatever you want to do with it, right? Well said, very nicely, like आली जनाब, आली जनाब, yeah, because ये चीज़ जो इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं होती, yes, like जिस तरह बोला है वो, no, but also like उस मूवी में भी फिट होता है ना, क्योंकि he is a king, अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पर तो वो है ना, जो किंग है वहाँ पर, तो उसको तो आली जनाब करके ही बोलेंगे ना आप, जो भी है। तो पेश है कुल्लू शबाब खिदमत आली जनाब, आतिश कदा अदाओं से जल उठेगा आपके दीदाए तर का हिजाब। अच्छा, ये मैं बताता हूँ, बता फिर से पढ़ो। आतिश कदा अदाओं से, मतलब आग, आतिश इज आग, यस, भरी अदाओं से, लाइक विद फायरी आईज, Yeah. और fire in my eyes. I mean essentially अदाएं मतलब gestures, right? So fiery or fear gestures kind of कर रहा है, या अपनी अदाएं दिखा रहा है वगैरह। तो fiery उसने ऐसे यूज़ किया है कि जल उठेगा आपके दीदाए तर का हिजाब, मतलब अच्छा, अब ये तो देखो, तो जल उठेगा आपके दीदाए तर, मतलब तो देखने को बोलते हैं ना, दीदा तो आंखें हो गई, और तर जो उसका आपके अब मान लो कि आपकी आंखों का हिजाब क्या है, आपकी आंखों का हिजाब क्या है, पलके, और लिटरली, या लिटरली इन दैट सेंस। मैं सोचा था लाइक नीचे देखने को बोलते हैं, हाँ, maybe बट आंखों का हिजाब अगर आप पलके देख, बट आई थिंक उसके अंदर वो और डेप्थ में गया थोड़ा, क्योंकि उसने दीदाए तर बोला, तो दीदाए तर की मतलब हो सकता है कि आपकी जो आप ऊपरी उससे अपने अंदर का जो सॉरो, जो आंखें रोना चाहती हैं, उनको जो आपने हिजाब के अंदर रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है, वो जल उठेगा। तो आपके जो सारे इमोशंस हैं वो बाहर आ जाएंगे, आपका जो सारा सॉरो है, जो आपकी लॉन्गिंग है, वो फिजिकल बैरियर को तोड़ के बाहर आ जाएगा, लाइक दैट्स व्हाई इट मेक्स सेंस, और मेटाफोरिकल बैरियर एज वेल, द हिजाब that the front that you have kind of thing, उसका वो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो और डेप्थ में गया, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि आपकी पलकें जल जाएंगी, which is not that great, पलकें जल जाएंगी तो बैड सीन है थोड़ा, या तो वो जो सॉरो है आपका, वो शायरी ऐसी होनी चाहिए, हाँ, कि उसमें ऐसा होगा आपकी पलकें जल जाएंगी। If that's how you express it, मैं जब शायरी लिखूंगा ना, मैं ऐसी शायरी लिखूंगा। तो वहाँ लिखी तो होती हैं ट्रकों पे, इंडिया पाकिस्तान में, लेकिन उस पे एक एपिसोड करना चाहिए हमें, उस पे भी एक एपिसोड करना है, ट्रक, इंडिया पाकिस्तान के ट्रक जो होते हैं, सही, अच्छे फिर तुमसे एक एक्सरसाइज भी करेंगे कि तुम अपनी मतलब ट्रक पे कौन सी शायरी लिखवाओगे। ओके, अगर मेरे पास ट्रक है तो, ट्रक तो आ गया ना, अच्छा, मतलब वही मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर मेरे पास ट्रक है तो मैं कौन सी शायरी लिखवाऊंगा। ओके, आई गेट इट, ओके, अपनी नहीं लिख गिव्स मी टाइम टू थिंक, अपनी नहीं लिख सकते। ओके, तो अगला है कि मैकश लबों पे आने लगी है प्यासी कुर्बतें। ये नहीं समझ आया। मैकश, मैं हो गई आपकी शराब, और कश जो इंटॉक्सिकेटेड हो गया, तो मैकश लबों, होठों पर आने लगी है प्यासी कुर्बतें। कुर्बतें होती हैं क्लोजनेस, सो एसेंशियली दैट लस्ट is showing the extreme, so he's lusting after him, he basically. yes, so that's what he's saying. शुरू में बोला लव है, लस्ट है, पता नहीं नहीं आगे खुल रहा है ना, अच्छा, जब तक हम वहाँ मतलब है कि खुल रहा है, खुलने का मतलब ये है कि पता चल रहा है, धीरे धीरे खुल रहा है चीजें, और आप आगे आगे पढ़ते जाते हो तो वो खुलती जाती है ना। तो मैकश लबों पे आने लगी हैं प्यासी कुर्बतें, हैरत ज़दा ठिकाने लगी हैं सारी फुरकतें, मतलब जो आपकी फुरकतें हो गए, जो जुदाई या लॉन्गिंग या तन्हाई, राइट, वो सब ठिकाने लग गई अब, क्यों, क्योंकि मुझे आप मिल गए, राइट। तो वो हैरत ज़दा भी है कि ये कैसे हो गया मेरे साथ, आज मैं तो हमेशा ही इसी स्टेट में रहा हूँ कि फुरकत की स्टेट में, तो वो उसका कह रहा है कि वो हैरत ज़दा ठिकाने लगी हैं सारी फुरकतें, आरिज़ों पे मेरे लिख ज़रा, आरिज़ तो पता है तुम्हें, हाँ, चीक्स,
अच्छा, ये मुझे क्यों पता? He's as I mean I thought it was like a commonly used word. No, I've never heard of it. Okay. गाल सुना है? Yeah. Yeah, गाल तो है ही, but R is भी कहते हैं आपके cheeks, face, essentially, right? R is essentially he's asking for a kiss here. I see. On the cheek. Kiss So on the he, cheek. yeah, he's saying. Being cheeky. Yeah. So R पे मेरे लिख जरा रिफ़ते चाहतों का सिला. वाह, ये जो पूरा बोला है basically this is to say कि वाह, फिर से बोलो. No, but वो ये कह रहा है कि जो सिला तो आपका रिवॉर्ड हो गया, रिफ़ते होता है आपका जो हाइट, एलिवेटेड, यू नो, लाइक, तो वो जो आपकी चाहते हैं, जो आपके मन के अंदर जो प्यार और चाहत भरी पड़ी है, उसका जो सबसे हाइट पे उसका रिवॉर्ड मेरे चीक्स पर दिखा दो. वाह, वाह, that's crazy. So it's just not a kiss. Yeah. You know, it's just not a kiss, but it's like a passionate kiss. But I don't know why he's asking on a cheek though. I mean, weird guy. Maybe that's what he wants to. Yeah. The heart wants what it wants, huh? Yeah. But yeah, that's the song. And एक बार पूरा पढ़ के सुना. Okay. तो बिन्त दिल मिस्रिया में पेश है कुल्लू शबाब, खिदमते आली जनाब, आतिश कदा अदाओं से जल उठेगा आपके दीदाए तर का हिजाब. मैकश लबों पे आने लगी हैं प्यासी कुर्बतें, हैरत ज़दा ठिकाने लगी हैं सारी फुरकतें. आरिज़ों पे मेरे लिख ज़रा रिफ़ते चाहतों का सिला, बिन्त दिल मिस्रिया में. वाह. How do you like it? अब समझ आया तो do you see it? हाँ, समझ आया तो मतलब this is like what I think of like classic poetry के मतलब simple सी चीज़ बयान कर रहे हैं लेकिन उसको बड़े ही like you know it's there's like ways of saying. Yeah. I mean that's poetry, right? Yeah, like you know but that's like, your command of the language. Yeah. Like the tip मतलब पोइट्री तो वो भी होती है जो ट्रक के पीछे लिखी हुई होती है ना. तुम्हें ट्रक वाली आज बहुत याद आ रही है. अगला एपिसोड ही करना पड़ेगा उसका. तो मेरे हिसाब से मतलब you know and then क्योंकि मूवी भी देखी हुई है, वो गाना भी देखा हुआ है, तो so now अच्छा वो समझ आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है ना अब उसका स्क्रीन पे. Okay. But why did you pick this song today? Like what? I mean, it to be honest, like I didn't pay much attention to it when the movie came out and everything. But the other day I was listening to it and I'm just like, Binte Dil Misriya mein, mujhe, I wanted to explore it. That what is the poet trying to say there? Yeah. Because I went into different directions of like, oh, what can it mean? Did he just put it there, like just because it sounds good, you know? But because जैसे अब बिंत पे ही वो कर देते हैं कि अब उसका कैसे यूज़ हुआ है, राइट? तो एक शेर है कि अगर ये महफिल बिनते इनब है, अगर ये महफिल बिनते इनब है तो मैं ऐसा कहाँ का पारसा हूँ, राइट? अब बिनते इनब है, अब उसके अंदर बात मैं क्योंकि बिंत का रेफरेंसेस ढूंढ रहा था कि बिंत ऐसा एज अ डॉटर ही यूज़ होता है, राइट? तो वो कहाँ यूज़ हो रहा है और किस तरीके से, क्या और भी कोई बिनते दिल की रेफरेंस है कहीं पर, राइट? बिकॉज मेरा दिमाग तो वही जा रहा है ना कि यार ये क्या सेंस बनी, डॉटर ऑफ द हार्ट, राइट? कि तो मुझे अभी भी नहीं समझ आया. तुम समझाते हुए रहे तभी समझ नहीं आया कि बिनते इज सो लाइक इनग्रेन्ड लाइक एज अ डॉटर एंड डॉटर ऑफ द हार्ट. ये मतलब आई मीन अगर किसी को आप लोगों को समझ आया तो जरा बताइए मुझे. नो बट यार शायर ने खुद भी समझाया है ये, जिन्होंने लिखा है, तो दैट्स हाउ ही एक्सप्लेन्ड इट. तो उससे पहले मुझे भी नहीं समझ आया था. तो अब जैसे मैंने अब ये शेर पढ़ा कि अगर है महफिल बिनते इनब है, राइट? अगर ये महफिल बिनते इनब है, मतलब है कि अगर इस महफिल में अंगूर की बेटी की महफिल है. अंगूर की बेटी क्या हुई? वाइन. अच्छा, राइट? तो मैं ऐसा कहाँ का पारसा हूँ. सो फ्रॉम द हार्ट, सो फ्रॉम द ग्रेप, ऑफ द ग्रेप भी हो सकता है. हाँ मतलब हाँ, लेकिन फिर मतलब मैं बेटी भूल जाऊँ. It's from it's part of it. It's like a creation of it, right? तो उसको अगर उस तरीके से समझो तो शायद सेंस बने, right? Creation of the heart. But actually, you know what? Like bin in Arabic, when it's used, it's more like son of, right, or daughter of. So of. Okay. So like so of the great. No, but then you're saying bint a that's what the a serves that purpose. Bint dil, daughter of the heart. But daughter nahi na, just creation of the heart. Yeah, from or maybe of the heart.
Yeah. So that's what it is. Like what is in the heart, like what we believe it is in the heart, emotions. So any emotion that comes up. But that's not what the poet meant. When I saw his video, it's actually on YouTube. You can find it. A.M. Toraz, who is the writer of this song, he kind of explained it, and yeah, I still wasn't convinced, but well, that's what he meant, right? So it's that's why I picked this one, because it was so it caught your attention. Yes, and it's still complicated. It's still bothering me. It's still bothering me. I have looked into a lot of references and everything, and शायर से बड़ा क्या reference होगी, जिसने लिखा है उसे तो पता ही है ना, तो at least उनका अपना मतलब तो है ना उसका. तो क्या नाम था शायर का? A.M. Toraz. A.M. Toraz साहब, अगर आप देख रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए अपना कि आपने इसका मतलब क्या है, आपने लिखा क्या है. No, yeah, he actually said it in the video as well कि जब हमें कमेंट करके बता देना. नहीं, जब उन्होंने लिखा था तो जो डायरेक्टर है संजय लीला भंसाली, डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी आई थिंक, आई डोंट नो, उन्होंने कहा था कि दिस सॉन्ग इज टू हार्ड फॉर पीपल, लाइक यू नो इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, so we shouldn't put that in the movie. It might sound good, but he said आपसे कोई पूछे तो उसको मेरा नंबर दे देना. He said that in an interview कि आपसे कोई पूछे उसको मेरा नंबर दे देना, तो तुराज साहब अपना नंबर डाल दो, सब आपको फोन करेंगे. सबसे पहले मैं करूँगा, मुझे अभी भी नहीं समझ आया, नहीं अब आ गया. But do watch his video though. Like I think he explains it much better than I did. Yeah, I would say watch the video of the song first. Yes. जब भी हमारी conversation हुई है, ये in the backdrop, you know, it would make a lot more sense. और शायद थोड़ा lyrics भी समझ आ जाएंगी, फिर आप जाके वो video देखेंगे. Yeah, why not? Nice. Alright, cool. Nice. तो यहीं पे आज हम खत्म करते हैं अपना एपिसोड. मुझे अच्छा लगा यार, क्योंकि आज हमने एक गाना पकड़ा है और ऐसी जिसकी मैंने मूवी भी देखी हुई है. Yeah, there you go. So you understood the references and everything. Okay. Exactly. But that one is what we are struggling with, huh? Yeah. That is the one we are struggling with. That is like, what could it mean? Yeah. Hey, maybe we'll do another episode once we understand, or maybe do a short or something. Or maybe we should do more songs like this from movies that we can explore. Yeah. Okay. Yeah, I mean, I like the fact this was a current मतलब आज की तो नहीं है मूवी, लेकिन करंट मूवी है. Relatively, yes. यार आज मैं उसका गाना सुन रहा था, एक मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, मेट्रो इन दिनों, कायदा. गा के सुनो. मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन गाना बहुत अच्छा लगा जब वो गा रहे थे. हम कर लो थोड़ा. I don't remember the lyrics because there were two different versions of it. नहीं करनी होती. नहीं, मुझे ट्यून भी याद नहीं है. Why? Because लेकिन क्योंकि उसके lyrics अच्छे. मुझे यार, to be honest, personally, I like lyrics better. Like I focus more on the lyrics. So tune, yes, it catches my attention and everything, but still I focus on the lyrics more. It has to go hand in hand. Yeah, I mean, yeah, obviously, but like you know, कुछ गज़लें हैं जो नहीं गाई जाती, जो सिर्फ सुन मतलब अब की हुए, तो I focus on the lyrics. अच्छा, ठीक है. So, but वो कायदा, it's a very good song. I liked it. So I'll check it out. Yeah, कायदे से मोहब्बत हुई. और अगर समझ नहीं आएगा तो हम यहीं बैठे होंगे. No, it's very easy. You will. But आ जाएगी. कहता हूँ अगर समझ नहीं आएगा तो फिर भी हम यहाँ बैठे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे. आ जाएगी. ठीक है. If you guys want us to discuss more songs, please give us some ideas. कौन सी मूवी, कौन से गाने, कोई अगर particular writer है, you know, we would be happy to discuss. I think people will be like doing that Persian song in that Animal movie. Oh, अच्छा. Yes, you have. वो वाला अभी Ed Sheeran का भी तो एक आया है ना, जिसमें उसमें. Yeah, with Arijit Singh, right? नहीं वो तो आया ही है, लेकिन एक वो बड़ा अच्छा गाना है वैसे, Sapphire. लेकिन उसका एक आया है जिसमें फारसी भी है, अजीज़म. अजीज़म. I have no idea. No? Okay. Maybe it's not a good song. Okay, maybe this will turn into a channel about songs and whatnot. So. Okay. That's not my purpose. Let us know what you would like to hear, and yeah. All right. Well, thank you guys. Thank you for joining us today. Thank you.